Okay, please pay attention. In the last class, we have started with a very simple program. We were trying to create a calculator, a simple calculator, right? Wherein we wanted to add operations to add two numbers, subtract two number, multiply or divide two numbers, and so on, right? So what we have done is we have created a class calculator, right? We have created a package in.ac.jamia hamdard, and then we gone to the browser, and there we have seen that corresponding to this package structure, exactly you will see the same kind of folder structure being created over there. That means in the project, let me show you again if you've forgotten them. Uh, what is the workspace? If I want to find out what is the workspace, I will try to switch it. In fact, I will not try to switch it, but just I will have a look at it. So under user shhi, so okay. So this was the workspace, and we have seen the workspace is the folder where we keep all our programs. Okay. So inside that, we have got three projects. The project that we are working on is this project is in this calculator.java is in demo project, right? You can see the path here. It's in the demo project, right? Demo slash src slash in slash ac slash jamia hamdard and so on, right? Uh, we have seen in the last class that in this project, when you go to the src folder, you will find the same directory structure available over here, right? in.ac.jamia hamdard. And we call this calculator the class calculator not just as calculator but rather in.ac.jamia hamdard.calculator as a fully qualified class name. So that is our fully qualified name. Okay, we have seen why we talk in terms of the fully qualified class name, right, in the last class. I hope you remember. Soon I will upload the lectures also, then you can revise. So one thing, there is more to see. Just parallel to the src folder, right? Src means source code, right? Just parallel to the src folder or in the same directory, you will find a bin folder, right? Bin means binaries, right? When you go to the bin folder, you will find again the same structure that you have created for the package and that exists in the src folder. That means you will see the in existing first, then within that ac, then within that jamia hamdard, and then you will see not .java file, but you will see calculator.class file. So all the source code files, that means .java files, are in the same nested directory structure as the package, and they are in the src folder. Whereas the classes which are compiled, they go to the same directory structure in the bin folder. Okay, clear हो गया? Here, however, if we try to look at the project, we will just see the src folder. We won't see the bin folder in the IDE, right? So what we have done in this program is we have just created a class calculator, and then there was a main method. We know that main method is the one from which the execution enters, right? Or the execution starts in almost every languages, right? So we have got the main method. About the this signature or prototype that you prefer to call, we have seen that we will try to understand word by word what each and every word, like public, what public means, what static means, what void means in the later classes. As of now, all we need to understand, the name of the method is main. Okay, and that is required to start the execution of the program. Now because this is a class, we need to create an object out of it to access any variable
or any method. But do we have any variable in this class, calculator class? Do we have any state variables? No. This is okay. This is the method local variable because it's defined in the main method, right? We don't have a if I would have to define a state variable, I would do it here outside any method, but within the scope of the class. So, for example, if I say int instance int where, for example, okay, so that is called as an instance variable, okay, and that will hold the state of the object, and the state of the object can change. That means if we have got multiple objects, then every object may have a different instance or different state at a point of time. Even the same object may change its state over a period of time, right? That means the value of the variable which defines the state of the class may keep on changing. इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम में जो वैल्यूज हैं, अगर मान लीजिए स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर आप 10 वेरिएबल आपने डिफाइन कर रखे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, नेम हो गया, एज हो गया, किस कोर्स में पढ़ रहा है, राइट, ठीक है, उसके बाद कितनी फी स्ट्रक्चर है उसकी, किस सेमेस्टर में है ना, क्या क्या कोर्स उसने ले रखी है, उसकी पूरी एक लिस्ट आपने मेंटेन कर रखी है, ऑल दोस थिंग्स. सो as soon as, say for example, if he has passed one semester and he goes to the next semester, then lot of things will change, right, lot of things will change. तो इसका मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है, right. So for this class specifically, if we look at the usability of this class, we do not require any state variable or instance variable. Why? Because all we are talking about some methods like add, subtract, multiply, or divide method, and they are the methods which are autonomous methods. Okay? They are self-sufficient methods. They are the unit of code that takes some information in the form of arguments, right? Fine. And they do some operation and they return back the result. That's it. There is no dependency of these method on the instance variable or the objects. ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है. This is something how the procedural language work. ठीक है, if you start building a program in a C language, for example, then what you will do? You will start with a single file with the main method and a lot of functions. The main method coordinates the call of the function, and finally the result is computed and either printed or written on a file or whatsoever. This is how it is done. ठीक है ना? And we are as of now following the procedural way of programming, right? Because we are not talking about the instance variable, we are not talking about the state of the variable, and we will see that how it is more important to think in that fashion when we start programming in object oriented programming language. ठीक है? So any difficulty in understanding these methods? These are simple methods. There is a add methods. We pass x and y to it. See, result variable is here and result variable is also here, right? But we do not have any conflicts because there are two method local variables in different methods. Okay. Then what we do is result is equal to x plus y, and then we return the result as promised, because we have promised that we will return an integer value, and so we have written an integer value. We are going from the basic because a lot of people are not from the computer science background, so we have to start a little, depreciating our expectations, right? Similarly, subtract is there, where we pass two variables x and y, and then we simply return x minus y. Okay? Simply going that way, we have multiply MUL method, where we pass two variables, two arguments, and then we return the multiplication of the two arguments, and then we have got div method, which is meant for the division of two variables, the value that we pass. So x is divided from y. Okay, so we have run this example and we have seen. Suppose now
I want to solve a equation. I want to solve equation or expression. Uh, let's see. ठीक है, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, we need to solve this expression by using all these methods. Can someone please come and do this for me? We have got all the methods, add methods, we have got the multiplication method for the multiplication of two numbers, we have got method for division, and we have got method for subtraction, right? What I want to do is I want to solve this expression. Okay, for a particular x and y, let's say the value of x and y are x is equal to say 4 and y is equal to 3. कौन करेगा के? आ जाइए सीआर साहब. निखिल तो करेगा, बैठो निखिल एक मिनट. मेरा एक रूल है, जो दूसरों को कहता है ना सबसे पहले मैं उसे बोला हूँ. आपकी चेयर में बैठ जाओ. कंप्यूटर में हाथ कम लगाओगे. सर निखिल जो है हेल्प करेगा तुम्हें. इधर बैठ जाओ तुम. बैठ जाओ. आज तो गलत हो गया बोलना भी. एक मेथड बनाओ, एक मेथड बनाओ जैसे इसके नीचे एक लाइन बनाओ, ऊपर ब्रैकेट्स के ऊपर ये राइट आउट. यहाँ यहाँ पर एक लिख पब्लिक इंट कुछ भी नाम स्पेस डाल, कुछ भी नाम लिख दे, मतलब जो फॉर्म देगा मैसेज एबीसी ब्रैकेट स्टार्ट कर. अरे नाम सेंसिबल इक्वेशन इक्वेशन ब्रैकेट स्टार्ट कर. अब इसमें दे इंट. सर एक्स वाई की वैल्यू फिक्स रहेगी ना? फिक्स कर दिया तो फिर इसको डालने की जरूरत नहीं है. यहाँ तो बताना तो पड़ेगा ना, फिर जरूरी नहीं है. इंट एक्स इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में डालना. ठीक है, अंदर डालना था, अंदर डालना. इसको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर, कर्ली ब्रेसेस. एक्स की वैल्यू डाल इंट एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू 4 है. क्लोज कर इसको. नेक्स्ट लाइन इंट वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3. क्लोज कर. टर्मिनेट एंटर. अब फॉर्मूला क्या है हमारा? 2x डिवाइड बाय लिख एक वेरिएबल और बना ले. इंट इंट का बना ले, z के नाम से बना ले. अब यहाँ फॉर्मूला लगा z इज इक्वल्स टू, अब 2 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय, डिवाइड लगा, डिवाइड 3 पावर है. अच्छा पावर है, पावर लगा
ऊपर वाला कर्व होगा ना, ऊपर वाले का रुका है शिफ्ट के साथ ये रहा 6 पे लगा 3 प्लस फिर वो लाइब्रेरी, हाँ इसको x इंटू एक्स 3 बार इंटू कर इसमें, हाँ ब्रैकेट ले, हाँ x इंटू एक्स इसके अंदर लिख 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 x सो रहा हूँ इंटू सर। सर आपके तो वर्ड ही मिटे हुए हैं x ये तो नजर और एक होगा मल्टीप्लाई लगा, एक होगा बीच में मल्टीप्लाई डाल, x क्यूब हो गया ये, उसके बाद क्या चाहिए हमें प्लस 3 इंटू y की पावर 2 है ना, y की पावर 2 हो गई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई टर्मिनेट, हो गया सर। देखो क्या किया तुमने 2x प्लस वाई। अब देखो एक तो पहला सवाल मेरा ये है guys, कि मैंने जो इतने सारे मेथड बना रखे थे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन, इसका तो आपने यूज किया ही नहीं। यूज करना था सर, एक तरीका ये था, ठीक है, हाँ वो कर सकते ये हैं, हो सकता है, ठीक है। मेरा पर्पस बनाने का ये था कि हम इसका यूज भी देखें, राइट। यस See, one thing is that we can just solve in a single line, ठीक है, but give us a very long complicated equation, then the functions are going to help me more, ठीक है। अभी हम उसको अज्यूम करते हैं, दिस इज वन वे, ठीक है, आप इसको रिटर्न करके प्रिंट कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। सिमिलरली एक और मेथड बनाइए, सॉल्व इक्वेशन या इक्वेशन बाय मेथड कर लीजिए। पब्लिक रिटर्न करेगा ना, रिटर्न करेगा, हाँ फाइनली मेन से कॉल होगा ना, ठीक है। मेन को रिटर्न करेगा, किस नाम से बनाना है, EQU ई की बाय मेथड कर लीजिए, बाय मेथड। उसको नेमिंग कन्वेंशन ना वैसे होता है, EQU बाय यही सॉल्व कर दे इसे भी। ठीक है सर। कुछ इनपुट लेगा सर, ऐसे एम्प्टी कर्ली ब्रेस लगा, एंटर, एक बार लग जाता है वो, इसमें नहीं लगाना ना चले इक्वेशन पे। क्या करना है सर, कैसे सॉल्व करूंगा बताओ। ऐसे पहला है x into x into x को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तुम करोगे, पहले x को 2 बार पास करोगे, फिर जब उससे वापस आएगा फिर उसको एक और पास करोगे, यानी मल्टीप्लाई में कैसे कर करोगे बताओ। तुम ऐसे लिखो x क्यूब वेरिएबल का नाम दो, लिख इंट एक्स क्यूब क्यूब एक्स क्यूब, x लिखो c बड़ा करो, दो एक्स को डाले, क्यूब का वेरिएबल दे दिया, इसमें लाके स्टोर कराना है हमें वो, तो अब हम क्या करेंगे सर, एक्स क्यूब लिखना है ना, थर्ड का नाम क्या है, एक्स की भाई वैल्यू, कुछ गलती करें तो बताइए आप। एक्स की वैल्यू क्या है,
अरे यार ये उस पे चला गया सर, इसका वो किससे ठीक होगा? इसका कर्सर उस पे चला गया सर, ये उस पे। हाँ ठीक है सर। कीबोर्ड दिखते हैं। थोड़ा सा आईडी का यूज करो। जब आपके पास ये चीज है ना, एक्स कंट्रोल स्पेस करो, क्यूब ऐसे ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, लॉन्ग ऑपरेशन आप करोगे। इसमें x की वैल्यू पास करेंगे, उसका मेथड लगाएंगे MUL इसके अंदर पास करेंगे हम x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 3, 4। y की 3 है ना। हमें x क्यूब निकालना है ना अभी, हाँ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक रिटर्न करेगा, फिर हम हाँ x क्यूब को दोबारा देंगे। हाँ कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले में करेंगे ना। हम्म MUL हाँ सर जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर, रिटर्न डाला है, नीचे डाला। x क्यूब आ गया सर हमारे पास। यस सर, अब हमें चाहिए ठीक है सर, y स्क्वायर y की वैल्यू 3 है ना, आ गया सर y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y, नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल लगा दे। ये क्या है हमारा 2 x क्यूब हमारा क्यूब, फिर हमारा प्लस 3 y क्यू आर, हाँ y क्यू आर, उसके बाद है हमारा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू भी दे देते हैं। कर देते हैं सर अभी। रिटर्न में रिजल्ट रिटर्न कर देता हूँ।
जिनको कोडिंग नहीं आती वो भी देख करके पुस्तक समझ रहे होंगे, राइट? मतलब क्या है तो फंक्शन का नाम क्या था हमारे? कैल इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी ऑब्जेक्ट का रिटर्न, ठीक है? कैल से ही कॉल करेंगे मेथड कैल डॉट, दो मेथड है, एक इक्वेशन है, क्वेश्चन। ठीक है? इसका रिजल्ट लीजिए, सर डाइट पेंट करा दो इसी से। पेंट कर दीजिए, बल्कि एक काम कीजिए, उसको रिजल्ट वन में लीजिए, डायरेक्ट पेंट मत करिए क्योंकि बहुत लोग अभी बेसिक जानते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, रिजल्ट वन में लीजिए, इक्वल टू ये टाइप में करूँ उसको इंटीजर हाँ टाइप में करूँ, इंट रिजल्ट टू, बाय मेथड। सर वो क्लिक कर। जब आईडी यूज कर रहे हो ना, ये आईडी तुमने एक्लिप्स यूज किया कि नहीं किया पहले? किया है? मॉल में आ गया, मेरे वाले में कैपिटल में आता है बस। ठीक है सर। सेम है सर। क्लियर है? डाउट है? तो देखो हमारा जो बैच है वो मिक्स बैच है, कुछ बच्चे थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट जानते हैं, कुछ जावा भी जानते हैं, कुछ सी प्लस भी जानते हैं, तो हम एक काम करेंगे, दोनों का ध्यान रखेंगे, थोड़े बेसिक कंसेप्ट शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे थोड़े आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है? अभी हमने एक प्रॉब्लम देखी कि भाई ऐसे हम नॉर्मली प्रोसीजर लैंग्वेज में जैसे करते थे, सेम उसी तरीके से हमने क्या करा कि भाई एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर फिर डिफरेंट मेथड्स को कॉल किया, वो मेथड फिर नेस्टेड मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कॉल कर रहे हैं, अगर इसमें डिवीजन वगैरह होता है तो डिवीजन कॉल करते हैं, एडिशन कॉल करते हैं, सो ऑन। इतना सब करने के बाद फाइनली रिजल्ट एग्रीगेट होकर वापस मेन के पास आ रहा है, यानी टू द कॉलर। एक एक इसको आप एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मेन से आप शुरू करा आपने, फिर मेन से आपने कॉल करा ये दो मेथड, इक्वेशन इक्वेशन बाय मेथड कर दिया, फिर उनके अंदर फर्दर मेथड्स आपके कॉल हो रहे हैं, सब कुछ एग्रीगेट होके वापस मेन पे आ रहे हैं, मेन पे आके आपको ये तो प्रिंट कर रहे हैं जो भी उसका करना है, आपको फाइल में राइट करना है, डेटाबेस में लॉग करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, राइट? So this is a typical procedural way of doing thing, ठीक है? Now there is one of the deficiency in the procedural language. Say for example, till now we were talking about all these methods: multiplication, division, addition, and subtraction in terms of just two parameters, और we were passing two arguments. जब यहाँ से हम कोई चीज पास करते हैं ना, देखो यहाँ से हमने कुछ पास किया, जैसे मल्टीप्लाई में हमने दो चीज पास की, एक फंक्शन को, नेस्टेड फंक्शन को पास कर दिया, यानी ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ रिटर्न करेगा रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होगा वो फिर मल्टीप्लाई होगा एक्स से, राइट? थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया ताकि आप समझें कि फंक्शन के अंदर भी अगर आप फंक्शन पास कर रहे हैं, अगर उसका रिटर्न टाइप भी सेम टाइप का है जिस टाइप का आप यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लाई फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप को मल्टीप्लाई करके, राइट? और इस मल्टीप्लाई फंक्शन के जो दो आर्गुमेंट आपको पास करने हैं, दोनों इंटीजर टाइप के पास करने हैं, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व है यहाँ पर। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी हम पास कर रहे थे सब कुछ हमने दो दो वेरिएबल के टर्म में पास किया, ठीक है? नाउ लेट अस सपोज अभी हमें ये एक्स क्यूब निकालना था, है ना? तो कितना अच्छा होता कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स को पास करने का भी तरीका होता। यहाँ पे तो एक्स क्यूब है, x1 इंटू x2 इंटू x3 मल्टीप्लाई करना होता है हमको, तो भी तीन पैरामीटर चाहिए, फिर चार पैरामीटर की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? इस तरह जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम चाहें उतने ज्यादा पैरामीटर्स की जरूरत हमको पड़ सकती है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कैलकुलेटर एंड वी डू नॉट वांट टू रिपीट सच काइंड ऑफ स्टेप्स कि अगर मान लीजिए कि आपको चार बार पांच बार मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के अंदर फिर मल्टीप्लाई फंक्शन लिख के फिर मल्टीप्लाई फंक्शन लिख करके ये पढ़ने में भी एक
रीडेबिलिटी भी इसकी आपकी लॉस्ट हो रही है। फाइन गाइस, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर हम प्रोसीजर जैसे सी में हम करते थे उसके तरीके से हम चले, तब हम क्या करेंगे, फिर हम सेपरेट मेथड्स बनाएंगे, यानी मेथड्स विथ टू आर्गुमेंट। ठीक है, हमने ये मेथड बनाया और सारा कन्वेंशन हमने सब में यही यूज किया, विथ टू आर्गुमेंट, सब्सट्रैक्ट विथ टू आर्गुमेंट, डिवाइड बाय टू आर्गुमेंट, मल्टीप्लाई बाय टू आर्गुमेंट। फिर हम मेथड्स बनाए ऐड विथ थ्री आर्गुमेंट, डिवाइड बाय थ्री आर्गुमेंट, मल्टीप्लाई बाय थ्री आर्गुमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, फिर 4 के लिए हमें करना पड़े तो सेपरेट सेट ऑफ मेथड्स बनाए। ठीक है, तो सबका नाम हमको अलग अलग करना पड़ेगा। At the end of the day, we will end up with a complete long list of methods, right? And we have to keep remembering all those methods. और सबका पर्पस क्या है? अगर दो वेरिएबल को ऐड करना है तो जो उसके लिए आपने दो वेरिएबल को ऐड करने का मेथड बनाया है वो भी ऐड ही कर रहा है, 3 को भी ऐड ही कर रहा है, 4 के वेरिएबल पास करे तो ऐड ही कर रहा है, राइट? फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो नाम ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट हम यूज कर रहे हैं, इस नाम को हम रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? इस नाम को हम रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। जब दो वेरिएबल को हमें ऐड करना है तब एक मेथड का नाम कुछ और देना पड़ेगा, 3 वेरिएबल को ऐड करना है तो उस मेथड का नाम कुछ और देना पड़ेगा, 4 वेरिएबल को ऐड करना है तो उस मेथड का नाम कुछ और देना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब हम सेट ऑफ मेथड्स बढ़ाते जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग which is described in object oriented programming language. You have this in C++, you have this in C#, you have this in Java, you have this in any object oriented programming language. ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि जो मेथड का नाम आप यूज कर रहे हैं इसको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लोड कर सकते हैं। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ये दिख रही है वो सिंपली ये दिख रही है कि चाहे ऐड मेथड हो या मल्टीप्लाई मेथड हो या डिवाइड मेथड हो या सब्ट्रैक्ट मेथड हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दो मेथड को, दो पैरामीटर्स को रिसीव करके, दो आर्गुमेंट को रिसीव करके उनको ऐड करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जी मैम, हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए मैम। हेलो, जी जी बताएं, मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ कर लो कर लो। हाँ मैम बताइए। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, RT11 में हूँ मैं। जी जी, MCA बैच है। अच्छा, नहीं नहीं आगे तो नहीं गया हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं LT11 में हूँ। LT11 फुल हो चुका है क्योंकि और कोई रूम खाली नहीं था, तो वो बैठाऊंगा कहाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। या तो अगली क्लास से उनको बोल दीजिए। हो गई, अच्छी खासी देर हो गई है। ठीक है। ओके गाइस, देखो अब तक हमने ये देखा है किसी एक स्कोप में दो आइडेंटिफायर को हम यूज नहीं कर सकते सेम नेम से, राइट? आइडेंटिफायर का मतलब क्या डिस्कस किया था?
चाहे आप क्लास का नाम बता रहे हो, चाहे आप मेथड का नाम बता रहे हो, या फिर आप वेरिएबल का नाम बता रहे हो। इन तीनों में से किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम आप इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर इन जनरल। ठीक है, फाइन। एक स्कोप में यानी एक मेथड अगर स्कोप हो गया तो दो वेरिएबल सेम नेम से नहीं हो सकते। ठीक है, नाम का कोलिजन होगा। फाइन। एक क्लास में दो मेथड सेम नेम से नहीं हो सकते, ये हमने देखा था, क्योंकि नाम का कोलिजन होगा। ठीक है, बट दिस in object oriented programming language there is a small change in the definition of having the same name. If we change either the type of the variables or the number of variables, ठीक है, then it is possible for us to reuse the same name. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये ऐड मेथड बनाया है जिसमें x और y दो वेरिएबल हमने पास किए हैं, राइट? x और y दो वेरिएबल पास कर रहे हैं, राइट? If I want, I can just create another method, say public add, ये भी इंटीजर रिटर्न करेगा, and then what we are doing is int x comma int y comma int z, तीन नंबर हमने पास करे, राइट? All we did is we are return x plus y plus z. ठीक है, अभी देखिए कोई कंपाइलेशन एरर हमारे पास नहीं आई है, हम आईडी में काम कर रहे हैं। अगर कोई कंपाइलेशन एरर होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको दो ही वेरिएबल यूज किया होता, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर रखा होता, वी आर गेटिंग द कंपाइलेशन एरर। ठीक है, क्योंकि आईडी पीछे आपके हाथ के हाथ कंपाइल करता जा रहा है, और कंपाइल करने के लिए यूज क्या कर रहा है? द सेम जावा सी जो कि आपकी जेडीके में मौजूद है। इसीलिए क्या इसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इंटीग्रेट हो रहा है सेम जेडीके से, राइट? फाइन। लेकिन अभी यहाँ हमारे पास कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी अगर हम either the list of the parameter, if we change the list of the parameter, or if we change the type of the parameter. That means either we can increase or decrease the number of parameter, or if we have the same number of parameter, the type of the parameter must be different, not the same. Hello, कौन? हाँ, कौन बताइए? ठीक है, similarly I can write a new method for subtracting, say for example, if we are taking three arguments, then probably we must subtract from the first element the second element for the first element, then whatever the result we get, we try to subtract the third element from the second element and so on. ठीक है, if you want to multiply, we can create a multiply method that can take three arguments and that can return a result of multiplication of the three arguments, right? ठीक है, now this is what we call as method overloading. We are overloading the method with additional responsibilities. ठीक है, if you want to further overload the method, then we can say public int add, let's say we are talking about four variables now, ठीक है, or four arguments that you want to pass, int x comma int y comma int a comma int b, right? नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि कई चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, रिटर्न x प्लस y सॉरी y प्लस a प्लस b। ठीक है, तो जितने भी हम चाहें अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स के हम मेथड बना सकते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। नाउ इफ यू वांट टू हैव a same add method with two parameters only, right? So we need to change the type of the parameter. So we can also do something like this, public add कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो ब्लैंक वाले में अपने आप जाके वो करें। अगर इनकेस कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, तो जो नल वाला होगा ना उसमें जाके वो मतलब कितने भी पैरामीटर आप पास करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? मैंने जितने भी हैं, जैसे हमने कुछ मिनिमम दिए, इसमें जैसे 2-3 दे दिए, बट ये कि हमने वैल्यू 4 या 5 कर दिया डाउन,
एक ब्लैंक पैरामीटर से ना वो कंडीशन अगर हम किसी से भी मैच नहीं खाएगी ना तो वो वहाँ चला जाएगा अंदर डिफॉल्ट के तौर पे। डिफॉल्ट वाले पे चला जाएगा। इसमें तो हम बहुत सारे दे रहे हैं। Okay, let's say now we want to have two arguments only, right? But in that case we will have to change the type of argument. That means we can have one argument as x, which is an integer type, and then one argument could be a floating point, right? Now this is again a valid override. ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, प्रॉब्लम क्या आई बताइए, क्या दिख रही है प्रॉब्लम? x is integer, y is float. इंटीजर फ्लोट का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? फ्लोट होगा, राइट? और हमने क्या प्रॉमिस कर रखा है कि हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आना चाहिए? अपने आप ये फ्लोट बन जाएगा. सो नाउ वी हैव गॉट अ प्रॉब्लम. आइदर वी हैव टू चेंज द रिटर्न टाइप टू फ्लोट, थिंग्स विल बी ओके, ठीक है? और कैन वी डू एनीथिंग एल्स? Or we can just do a typecast, and this is what we call as explicit typecast, because explicitly we are mentioning that whatever the result be, I am aware of it that it could be a problem, but just convert into an integer variable integer and then return me the result. Fine. So this is what we call as explicit cast. ठीक है? But in that case the floating point part will be truncated and we have to bear the loss, the responsibility of the loss. ठीक है, बात क्लियर हो रही है? Okay. Any questions in this? ये clear है? ठीक है? Essentially the crux is what we are doing is we are reusing the same name of the method by either changing the number of the parameters or by changing the type of the parameters. ठीक है? By the way, पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है? इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं. तेज बोलो. पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है? दो टर्म यूज करते हैं ना, अक्सर इंटरचेंजेबली कर लेते हैं अननोइंगली, ठीक है, अनकॉन्शियसली. जो कॉल कर रहे थे वो क्या बोलते हैं उसको? आर्गुमेंट बोलते हैं. तुम क्या बोल रहे थे? देखो ये लाइन जो है ये क्या है? मेथड की डिक्लेरेशन है, ठीक है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो एक्स टाइप के बकेट में, एक्स नाम के बकेट में जाएगी जो कि इंटीजर टाइप का है, और वाई नाम के बकेट में जाएगी जो इंटीजर टाइप का है. इसको हम बोलते हैं मेथड पैरामीटर्स, ठीक है? और जब जब कॉल करते हुए हम कोई वैल्यू भेजते हैं तो जो वैल्यू भेज रहे हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल करा मल्टीप्लाई के अंदर, ये वैल्यू पास की और ये वैल्यू पास की. सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई में वाई कमा वाई पास की. नाउ दीज वैल्यूज आर द आर्गुमेंट्स, ठीक है? जो मेथड में आप देख रहे हैं ना ये पैरामीटर है. मेथड में जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना, दैट इज पैरामीटर, एंड द वैल्यू दैट यू आर पासिंग इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट. बता रहे हैं ना क्या किस चीज का बताते हैं वही दिया ना. वहाँ पे तो हमने बस डिक्लेयर करा है कि ये ऑपरेशन होगा. यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन सा किस चीज. अच्छा गाइस देखो यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है. लिसन लिसन, आपके सीआर साहब का कहना है कि भाई हम यहाँ पे जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं एक्स और वाई,
This is occupying some memory, whereas what we are declaring as a parameter, that is just a declaration, it's not occupying a memory. क्या राय है? क्या लगता है भाई? सिंपल टर्म में बताऊं, एक टाइम में किसी एक मेथड के अंदर ही कंट्रोल रहेगा, राइट? जिस मेथड के अंदर कंट्रोल है उसका वेरिएबल जो है स्टैक में मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? यानी जब आप इस इक्वेशन बाय मेथड के अंदर थे तो ये x एंड y 4 और 3 होल्ड कर रहा था, तो इसके अंदर था। जब इससे नेस्टेड कॉल आगे गया, ठीक है, जब इसके अंदर आपने एंटर किया तो ये मेथड लोकल वेरिएबल दोबारा बना इसका मल्टीप्लाई के अंदर, वो उस टाइम पे वो उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो कहाँ करेगा? स्टैक में करेगा अगेन, ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखें, जब भी हम मेमोरी को एसोसिएट करते हैं मेथड के वेरिएबल से, जो पैरामीटर होते हैं उनको भी मेथड लोकल वेरिएबल ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्कोप भी जो होता है वो मेथड का ही होता है। यानी x और y जो आपने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, इसको आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। तो चाहे पैरामीटर हो या इसके अंदर कोई वेरिएबल, हम से फॉर एग्जांपल इंट रिजल्ट हम डिक्लेयर कर दें, राइट? तो रिजल्ट का स्कोप भी सेम होगा जो x और y का स्कोप है, यानी जितनी दूरी में हम उसको यूज कर सकते हैं वही कर्ली ब्रेसेस मेथड का होगा, बॉडी होगी मेथड की, राइट? तो जब वो स्कोप में एंटर करेगा तभी हम उसकी मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है? तो जब भी हम मेथड के वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है? मेथड के साथ एसोसिएट करते हैं, वो स्टैक में जाता है। और एक बात आपको बताई है कि जब हम किसी मेथड के ऊपर यहाँ पर क्लास लेवल पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन होती है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंट x यहाँ डिक्लेयर किया, फ्लोट y यहाँ डिक्लेयर कर दिया, राइट? तो ये जो वेरिएबल होंगे, अगर इनके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं या इवन हमने डिक्लेयर भी कर दिया, तो इनके लिए जो ब्लॉक बनेंगे या जो बक्से बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? वो हीप में बनेंगे। वो एक अलग लार्ज पीस ऑफ मेमोरी चंक है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? जब हम मेथड के वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और इवन मेथड के इंस्ट्रक्शंस की बात भी कर रहे हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो हम उनको एसोसिएट करते हैं स्टैक से, राइट? स्टैक इज द डाटा स्ट्रक्चर, बात समझ में आ रही है? हीप इज अगेन अ डाटा स्ट्रक्चर, बट इट्स लाइक अ लार्ज पूल ऑफ एलिमेंट्स जिसमें हम डंप कर सकते हैं चीजों को, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंस्टेंस वेरिएबल, वी आर टॉकिंग अबाउट not the stack, but we are talking about a centralized located place where we will have small objects and each object will have its own elements like x and y, ठीक है? and that will be located in a heap. तो मेथड के लिए हमने स्टैक को क्यों चूज किया? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो क्या होता है फिर? अच्छा, स्टैक की डिफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है या फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है? तो क्यों हो गया यार? फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो स्टैक का मतलब क्या हो गया? एक चीज हो गई, इसके ऊपर एक चीज रखी, इसके ऊपर एक चीज रखी, यही तो स्टैक होता है ना? तो यानी जो लास्ट वाला है, जब निकालना शुरू करेंगे तो इसको पहले निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, राइट? अब सोचो, आप जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है या फंक्शन कॉल जो होते हैं उसमें क्या होता है? सबसे पहले आप मेन पे आए तो आपने मेन का फंक्शन कॉल स्टैक के सबसे नीचे रख दिया, ठीक है? उसके ऊपर आपने क्या करा? आपने अगला इंस्ट्रक्शन चलाया। मान लो अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? किसी मेथड का कॉल है, इक्वेशन कॉल है, तो मेन के ठीक ऊपर कॉल टू इक्वेशन चला गया, ठीक है? अभी हम इस पर नहीं आए क्योंकि इक्वेशन के अंदर वो एंटर कर गया है। अब इक्वेशन के अंदर जाकर के फिर जो वेरिएबल्स हमारे हैं एक्स वाई जेड आपने 3 डिक्लेयर करे, ठीक है? तो इक्वेशन कॉल के ऊपर सबसे पहले x आ रहा है तो x इज इक्वल टू 4 चला जाएगा, उसके ऊपर y आ रहा है y इज इक्वल टू 3 चला जाएगा, फिर z आएगा। जब आपने ये ऑपरेशन करके z में असाइन कर दिया, राइट, और रिटर्न z कर दिया,
तो क्या होगा कि सबसे पहले सबसे ऊपर जो z है वो रिटर्न हो रहा है, तो सबसे पहले z उससे बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, x और y बाहर निकलेगा, उसके बाद इक्वेशन का जो कॉल था वो बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद मेन पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, जो नेक्स्ट कॉल है नेक्स्ट मेथड का, वो कौन सा था, पहले इक्वेशन था फिर इक्वेशन बाय मेथड था, अब वो बाद में एंटर करेगा। तो ये ऑपरेशन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर से करना ज्यादा सेंसिबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे जिस भी स्टेटमेंट की हम बात करें, जब ऐसे तो मेथड पैसिव स्टेट में होता है, जब वो एक्सिक्यूट होता है तभी एक्टिव स्टेट में होता है। तो जब वो एक्टिव स्टेट में पहुंचता है तो उस वक्त चाहे किसी स्टेटमेंट की बात करें मेथड की, या उसके अंदर के डिक्लेयर किसी मेथड लोकल वेरिएबल की बात करें, या फिर उसके पैरामीटर वाले वेरिएबल्स की बात करें, ये सब जो होते हैं स्टैक पे ही अक्यूमुलेट होते जाते हैं, और जैसे जैसे ऑपरेशन पूरा होता जाता है स्टैक से टॉप से बाहर होते जाते हैं, ठीक है। whereas these variables which are not in any defined in any method, ये क्लास के बाद जस्ट इमीडिएटली डिफाइन हो रहे हैं, राइट। इनको हम कहाँ कहते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये हीप में जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जो स्टेट वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल जिनको कहते हैं वो हीप में जाते हैं, जो मेथड लोकल वेरिएबल है वो स्टैक में जाते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर हैं, फाइन, क्लियर है। चलो रोकते हैं, आज पता नहीं बोलना मुझे भी दिक्कत हो रही है सुबह से, अभी एक और क्लास है।